Okay, so good afternoon everyone, class 4. Today we will pursue our syllabus with chapter 9 of your English grammar book, which is model auxiliaries. Okay, chapter 9 model auxiliaries, and the page number is 43. Page number is 43 and the chapter is 9. So let's start everyone and focus on the screen. Don't move here and there. The verbs used before main verbs to express meanings like permission, possibility, certainty, and necessity are called modal verbs or modal auxiliaries. वह verb जिन्हें क्या मेन वर्ब से पहले यूज किया जाता है, ठीक है. So we have two types of verbs. We have two types of verbs. First is helping verb. Helping verbs. Helping verbs. And the next one is main verbs. And the next one is main verbs. Okay, so first is helping verb and the next one is main verbs. Helping verbs means is, am, are, was, were, has, have, had. So these are helping verbs. And the main verbs: drinking, washing, cleaning, playing, studying, learning, teaching. So these are main verbs. Okay, लेकिन कई बार मेन वर्ब से पहले कुछ ऐसी वर्ब्स का यूज किया जाता है जिन्हें हम परमिशन शो करने के लिए, पॉसिबिलिटी शो करने के लिए, सर्टेनली शो करने के लिए, नेसेसिटी शो करने के लिए यूज करते हैं. ठीक है. I can go there. I can go there. I am giving you example. I can go there. I can go there means मैं वहां जा सकता हूँ. मैं वहां जा सकता हूँ. So it is my ability. It is my ability means मैं वहां जा सकता हूँ. So it is my ability. तो ये एज हेल्पिंग वर्ब भी यूज हो रहा है यहाँ पर एंड एक मॉडल की तरह यूज हो रहा है. इनको मॉडल्स कहा जाता है. और किससे पहले यूज होता है? एक वर्ब से पहले हम इसे यूज करते हैं. तो इन्हें इसलिए क्या कहा जाता है? मॉडल वर्ब्स कहा जाता है. और क्या कहते हैं? व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ मॉडल्स? व्हाट इज द अदर नेम ऑफ मॉडल वर्ब्स? इज मॉडल auxiliaries. Model auxiliaries. Okay, and other model auxiliaries are other examples: can, could, may, might, will, would. Okay, shall, should, must, ought. So these are another examples of modal verbs or modal auxiliaries. Okay, so now let's start further. Okay, so first point is can and first model auxiliary is can. Can को सबसे पहले हम read करेंगे. Can. Okay, can को हम कब use करते हैं? Can is used to express ability or capacity. Ability means आप क्या कर सकते हो, आप क्या चीज करने के लिए able हो. I can study. I can study means you are able to स्टडी मीन्स आप एबल हो, आप वो काम कर सकते हो. जो काम आप कर सकते हैं उसे क्या कहते हैं? एबिलिटी कहते हैं. इट्स योर एबिलिटी और कैपेसिटी. तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? कैन. आई कैन गो देयर, आई कैन स्टडी, आई कैन टीच यू, आई कैन ड्रिंक वाटर, आई कैन ईट लॉट्स ऑफ फूड, आई कैन ईट लॉट्स ऑफ फूड. मैं बहुत सारा खाना खा सकता हूँ. सो इट्स योर एबिलिटी. ओके, I can swim across the river. मैं swim कर सकता हूँ across the river. Can you hold the door for me? क्या आप मेरे लिए ये डोर पकड़ सकते हो? So it's your ability. Okay. So can shows your ability. Can shows your ability. Okay.
can and may. Second point is, it is the first point and it is second point. Can and may are used to express permission. जब आपको किसी से परमिशन लेनी होती है तो आप can का या may का यूज करते हैं. परमिशन मीन्स आज्ञा. जब आपको किसी से कुछ पूछना होता है कि क्या मैं ये कर सकता हूँ, तो आप क्या यूज करते हैं, कैन और मे यूज करते हैं. ठीक है, आप पूछते हो ना मैम से क्लास में एंटर करने के टाइम क्या पूछते हो, मैम मे आई कम इन, पूछते हो ना, मैम मे आई कम इन. ओके, so may is a permission word. May is a permission word. Okay, you can come in. You can come in. आप अंदर आ सकते हैं. So आपने किसको दी परमिशन, दी आपने किसी को परमिशन दी. Okay, can I borrow your notebook? Can I borrow your notebook? Pencil, bag. Can I borrow your? क्या मैं तुम्हारी पेंसिल ले सकता हूँ? क्या मैं तुम्हारी नोटबुक ले सकती हूँ? So क्या है, परमिशन शो करने के लिए आप यूज करते हैं can and may. Okay, next is may. May is also, wait a minute class, just wait a minute. Okay, so the third point is, wait a minute, and the third point, first point we already discussed, second point, and the next one is third point, may. Okay, so may is also used to express possibility. Possibility means कोई संभावना होना, कि आज मैं अगर आपको बोलूं शायद आज बारिश हो सकती है, ठीक है, तो ये मेरा अनुमान है, ये मेरी प्रेडिक्शन है कि शायद बारिश हो सकती है. सो इट मे रेन टुडे और टुनाइट, कि आज रात बारिश हो सकती है या आज बारिश हो सकती है या टुमारो बारिश हो सकती है. इट्स माई प्रेडिक्शन. ये फिक्स नहीं है, ये पॉसिबिलिटी है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ओके, हम विश करते हैं, आपको मैंने विश दी, ठीक है, मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू. तो ये क्या है, मे वर्ड. आप किसी को जब विश करते हैं तब मे वर्ड को यूज करते हैं. जब आपको किसी चीज की संभावना या प्रेडिक्शन देना होता है तब आप मे यूज करते हैं, जो कि पॉसिबिलिटी है, वो चीज हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है. ठीक है, फोर्थ पॉइंट इज कुड एंड माइट. Fourth point is could and might are used as the past form of the can and may. Okay, can, past form of the can is could. ठीक है, could, and past form of the may is might. अगर आप वर्तमान में, प्रेजेंट में बात कर रहे हैं तो आप कैन एंड मे यूज करेंगे. अगर आप पास्ट में बात कर रहे हैं तो आप कुड या फिर माइट यूज करेंगे. पास्ट मीन्स बीता हुआ टाइम. ओके, सो एग्जांपल्स आर, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज योर एज. जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो मैं बहुत अच्छे से स्विमिंग कर सकता था. था मीन्स पास्ट. ओके, शी सेड आई कुड गो नाउ. She said I could go now or I might go now. Okay, third is I thought it might rain tomorrow. Okay, it might rain tomorrow. उसने prediction किया था, उसने prediction किया था. So these are the past form of may and might. Shall. Next point is, fifth point is shall. Shall is used in first person. Will is used in all persons for future tense. Shall and will को हम यूज करते हैं future tense के लिए. And what is the meaning of future tense? Means आने वाला समय. Present means this one, जो चल रहा है, this time. Past means जो बीता हुआ टाइम है, and the future is आने वाला समय. Okay, so I shall be 11 next week. ठीक है, वो कितने साल का हो जाएगा, next week 11. We will meet again tomorrow. हम कल दोबारा मिलेंगे. मिलेंगे मीन्स
फ्यूचर वो मिलेंगे, ओके। शुड एंड वुड सो आर यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ द शेल। शेल के लिए बेटा पास्ट फॉर्म हम यूज करते हैं शुड। आप किसी की बात अगर पास्ट में कर रहे हैं तो वो शुड होगा, और किसी की बात अगर आप फ्यूचर सॉरी पास्ट फ्यूचर में कर रहे हैं तो वो क्या होगा, वुड होगा। आई थॉट इट वुड गेट द फर्स्ट पोजिशन, she should be here by 5 o'clock. So these are past forms of shall and will. Should is used to express duty or obligations. शुड को यूज करते हैं जब आपकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मीन्स वो आपको काम करना चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अवर पेरेंट्स मीन्स हमें अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। वी शुड रिस्पेक्ट अवर एल्डर्स। वी शुड ओबे ट्रैफिक रूल्स। तो जब हमें वो काम ऑब्लिगेशन है, हमें वो काम करना ही चाहिए, इसका मीनिंग होता है चाहिए, शुड। ओके, जहां पर आपकी ड्यूटी बताई जाती है आपको कि ये आपके कर्तव्य हैं या आपकी ड्यूटीज हैं। We should respect our parents. We should respect our elders. So, should is used to express duty or obligations. Next point is must. Must is used to express necessity or obligation. ठीक है, नेसेसिटी मीन्स जरूरी, नेसेसरी मीन्स क्या होता है, जरूरी, एंड नेसेसिटी मीन्स जरूरत। ठीक है, यू मस्ट इम्प्रूव योर वोकैबुलरी। यू मस्ट मीन्स उसकी आपको जरूरत है। यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग। यू मस्ट इम्प्रूव योर हैंड राइटिंग मीन्स आपको आपके हैंड राइटिंग इम्प्रूव करने की जरूरत है। यू मस्ट टॉक सॉफ्टली, आपको बात सॉफ्टली करने की जरूरत है। ओके, सो नेसेसिटी मीन्स जरूरत। ought to का मीनिंग क्या है, ought to used to express moral obligations and probability. okay, we ought to help those in need मीन्स जो वर्क हमें करने चाहिए। we ought to help, हमें उनकी हेल्प करनी चाहिए जिन्हें जरूरत है। दिस मूवी ought to be good, शायद ये मूवी अच्छी होगी। तो प्रोबेबिलिटी, शायद हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। कोई मूवी देखने से पहले आप बोलो दिस मूवी ought to be good, ये मूवी अच्छी होनी चाहिए। तो दीज आर मॉडल ऑक्सिलियरीज।